حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی اور پہلی رات کا دردناک منظر جو جان کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام گئے تھے۔ قافلہ شام میں اپنا سامان فروخت کرنے کے بعد مکہ کی جانب واپس روانہ ہوا۔ تقریباً 24 دن کی مسافت کے بعد مقام جحفہ پر پہنچا۔ جحفہ وہ جگہ ہے جہاں سے شام کی طرف سے آنے والے لوگ حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قافلہ کامیابی کے ساتھ واپس آتا اور تجارت میں نفع حاصل ہوا کرتا تو وہ چاہتا کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے لوگ ان کا استقبال کریں اور انہیں مبارکباد دیں۔ چونکہ یہ قافلہ بہت زیادہ نفع کما کر آیا تھا، اس لیے کسی ویران مقام پر رکنے کے بجائے جحفہ جیسے بڑے مقام پر قیام کیا گیا۔ جحفہ سے مکہ تک کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر تھا۔ قافلہ وہاں رک گیا اور ہر تاجر نے اپنا غلام بھیجا تاکہ وہ مکہ جا کر اطلاع دے دے کہ قافلہ کامیابی کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ اس ذمہ داری پر مقرر تھا کہ وہ جا کر اپنی مالکہ کو خوشخبری دے، مگر میسرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میری مالکہ خدیجہ طاہرہ کو کسی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ خود مکہ تشریف لے جائیں اور یہ خوشخبری خود انہیں سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گا۔ پھر تمام غلام اپنی اپنی سمت روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو راستے میں ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ میسرہ نے گمان کیا کہ چونکہ صبح کا وقت ہے شاید آپ آرام فرما رہے ہیں اور شام کو سفر جاری رکھیں گے۔ میسرہ غلام ہے، آقا نہیں، اس کام میں اس کا کوئی دخل نہیں، لہٰذا وہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہم جفا کے نزدیک اس ٹیلے کے پہلو میں گئے اور وہاں بظاہر رک گئے۔ راستہ آنکھوں کے سامنے تھا لیکن چلتے ہوئے اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ میسرہ خاموش رہا۔ باقی تاجر جشن منا رہے تھے، کچھ لوگ آرام کر رہے تھے، تھکن اتار رہے تھے اور غلام دوڑے جا رہے تھے تاکہ اپنے آقائیں کو خوشخبری سنائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن کی صبح حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی چھت پر گئیں۔ ریشمی کپڑے کا ایک خیمہ سا بنا کر اس کے نیچے بیٹھی گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے فضا میں کوئی نور ظاہر ہوا ہو۔ پہلے خیال کیا کہ شاید سورج کی روشنی ہے، مگر فوراً احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں جتنی سورج کی تیز روشنی کے ساتھ ہوتی ہے۔ گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ جنت المعالی کے قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں ہے وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا ہے۔ جب مزید غور سے دیکھا تو ایسا لگا جیسے ایک قبہ بنا ہوا ہے جو سونے اور چاندی سے بنا ہے اور اس میں یاقوت و جواہرات کی لڑیاں لٹک رہی ہے۔ یہ قبہ ایک اونٹ سوار کے اوپر اس انداز میں ہے کہ پورا اونٹ اور اس کا سوار اس قبے کے اندر نظر آ رہا ہے اور وہ نور اسی قبے سے نکل رہا ہے۔ حضرت خدیجہ حیران ہو گئیں کہ یہ کیا منظر ہے، کہیں میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ فوراً اپنی کنیزوں اور سہیلیوں سے کہا، دیکھو جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں کیا تم بھی یہ دیکھ رہی ہو؟ سب نے مڑ کر دیکھا اور تصدیق کی کہ ہاں اے خدیجہ طاہرہ، جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں وہی ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت خدیجہ نے غور سے دیکھا اور بولی، جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا ہی اونٹ ہے۔ سہیلیوں نے حیرت سے کہا، خدیجہ طاہرہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا اونٹ تو میسرہ کے ساتھ شام کے سفر میں گیا ہوا ہے، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی ہے کہ نہیں، اب تو میں سوار کو بھی پہچان رہی ہوں، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر ساری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزری تو خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ وہ یاقوت سرخ کا قبہ جیسے خود بخود غائب ہو گیا ہو اور اس نور میں بھی کچھ کمی آنے لگی۔ دراصل پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ اونٹ سوار مکہ کی تنگ گلیوں میں داخل ہوا تو خدیجہ طاہرہ کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر اطلاع دی کہ ابو طالب کے بھتیجے تشریف لائے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ یہ سنتے ہی جناب خدیجہ بے اختیار دوڑ کر دروازے کی طرف گئیں۔ سب حیران تھے کہ وہ خاتون جس کے اشارے پر 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں آج خود بے چینی کے عالم میں دوڑ کر دروازے تک جا رہی ہیں۔
उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर लाया और पहला सवाल ये किया कि आप तिजारत के सफर से कब तशरीफ लाए। जनाब खदीजा के दिल में तजस्सुस था कि कहीं वही ऊंट सवार तो नहीं जिन्हें उन्होंने नूर में देखा था। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो अभी अभी मक्का में दाखिल हुआ हूं, अभी खाना खुदा तक भी नहीं गया। आप तक पैगाम देने आया हूं कि आपका काफिला पहुंच गया है, सामान तिजारत फरोख्त हो गया है और आपका गुलाम मयसरा भी आ रहा है। कुछ देर तिजारती गुफ्तगू होती रही। फिर जनाब खदीजा ताहिरा ने पूछा कि वो काफिला उस वक्त कहां है। पैगंबर इल्साम से वाकया कहा है, लेकिन इस्लाम से ने जहाफा में है। ये सुनकर खदीजा ताहिरा हैरान रह गईं कि आप कह रहे हैं आज सुबह आप काफिले से चले थे और अब यहां पहुंच गए, हालांकि इस सफर में कम से कम 2 दिन लगने चाहिए। पैगंबर इस्लाम से वाकया कहा है, जंग मिर्फ हो रही थी, तोहफे के तौर पर पेश किए। पैगंबर इस्लाम मकान से निकले और जहाफा की जानिब रवाना हुए। जनाब खदीजा ताहिरा को मगर अब भी इत्मीनान ना हुआ। दरअसल उनका मामला एक आम कारोबारी शरीक का नहीं था। वो दिल ही दिल में ये तय कर चुकी थीं कि अगर ये नौजवान वाकई सच्चाई, अमानत और नूर इलाही से मुनव्वर है तो यही उनके लिए बेहतरीन शरीक हयात होगा। इसीलिए वो अपने दिल में उठने वाले हर शक को खत्म करना चाहती थी। आब जमजम की मश्क और खाने का इंतजाम करने के बाद जनाब खदीजा ने कहा, अगर आपको जहमत ना हो तो एक तजवीज देना चाहती हूं। आप वापस काफले में चले जाएं और इन्हीं के साथ दोबारा मक्का वापस आए। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जनाब खदीजा की गर्ज यही थी कि वो यकीन कर लें कि जो नूर उन्होंने देखा था वो उनकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो नूर इसी नौजवान के साथ था या फिर किसी और की वजह से वो मंजर दिखाई दिया। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर उनकी दरखास्त कबूल की, बाहर निकले और वापस काफले की तरफ रवाना हो गए। जब वो काफले में पहुंचे तो मैसरा आगे बढ़ा और अर्ज की, या सैयदी, अब तो बहुत देर हो गई है, सारे गुलाम तो जा चुके होंगे, आप अकेले रह गए होंगे, लेकिन आप जल्दी से रवाना हो जाएं ताकि हमारी मालिका को भी दूसरे ताजरों के साथ ही कामयाबी की खबर मिल जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मैं तो खदीजा ताहिरा को इत्तला देकर वापस भी आ चुका हूं। मीसरा हैरान होकर बोला, या रसूल अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने तो आपको इस टीले के पीछे आराम करते देखा था, मुनासिब ना समझा कि आपको जगाऊं। मैंने सोचा कि आप थोड़ी देर आराम कर लेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाकर वापस भी आ गए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर वो नाश्ता निकाला जो खदीजा ताहिरा ने भेजा था और फरमाया, तुम तो खदीजा के घर में जिंदगी गुजार चुके हो, पहचानो कि ये खाना किसके दस्तरख्वान का है। फिर आबे जमजम की वो मुश्क सामने रखी जिस पर खदीजा ताहिरा की मोहर लगी हुई थी, जो ताजिर हजरात अपने माल पर निशानी के तौर पर लगाते थे। मीसरा की अकल हैरान रह गई, दिल यकीन करने को तैयार नहीं था, मगर सबूत ऐसे थे कि इनकार भी मुमकिन ना था। खुशी और हैरत के आलम में मीसरा ने काफले में जो भी करीब था सबको बुलाकर यह वाकया सुनाया और कहा, खुदा की कसम, ये कोई आम नौजवान नहीं, उनके साथ अल्लाह का खास नूर है। अक्सर लोगों ने कहा कि अब तो तुम जो कुछ भी कहोगे हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि जब से हम मक्के से निकले हैं इस नौजवान से ऐसे मोजज़ात जाहिर हुए हैं कि इनकार मुमकिन ही नहीं रहा। मगर अबू जहल ने तंजिया लहजे में कहा, ये क्या बातें कर रहे हो? ये नौजवान तो जादूगर है और जादूगर से हर बात की तवक्को की जा सकती है। खैर, अबू जहल की पार्टी इसे जादूगर समझ रही थी, मगर बाकी तमाम लोग कह रहे थे कि हमें खुद यकीन हो गया है कि ये नौजवान अल्लाह के नबी होने की अलामत रखता है और हर मौजज़ा दिखा सकता है। काफिला मक्के की जानिब रवाना हुआ और जब शहर के करीब पहुंचा तो लोगों ने बड़े एहतराम और शानो शौकत से इस काफिले का इस्तकबाल किया, इसलिए कि मक्के की तारीख में कभी कोई काफिला इतना कामयाब वापस नहीं आया था। जैसे ही काफिला मक्के के मकानात के करीब पहुंचा, मसरा ने एक तजवीज पेश की, तुम सब जानते हो कि इससे पहले भी मैं तुम्हारे साथ तिजारत में जा चुका हूं, लेकिन आज तक हमें कभी इतना नफा नहीं हुआ। ये सब इस नौजवान की बरकत है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मालों में से हदिया निकालकर इस नौजवान को पेश करें। पूरे काफिले में से किसी ने एतराज ना किया, अलबत्ता मयसरा ने ताकीद की, देखो ख्याल रखना कि ये चीज सदका ना होने पाए, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि ये नौजवान सदका कबूल नहीं करता, अलबत्ता हदिया खुशी से कबूल फरमा लेता है।
अबू जहल जैसा शख्स भी उस वक्त चुप रहा। एतराज करने की हिम्मत किसी में न थी। काफिला मक्का में दाखिल होने से पहले सब ताजरों ने दिल की खुशी और एहतराम के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदिया कबूल फरमाया और खामोशी से अपने मकान की जानिब रवाना हो गए। अब उन्हें खदीजा ताहिरा से कोई तिजारती गुफ्तगू करने की जरूरत ना थी, मगर इधर खदीजा ताहिरा बेचैन थी। वो दोबारा अपनी छत पर आई और निगाह दौड़ाई तो देखा कि वही नूर जिसे उन्होंने पहले देखा था अब फिर इस नौजवान के साथ जाहिर हो रहा है। दिल को यकीन होता चला गया कि यही वो गौहरे मकसूद है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। अब मयसरा जज्बात और जोश में भरा हुआ जनाब खदीजा ताहिरा की खिदमत में पहुंचा। जनाब खदीजा ने मुस्कुराकर पूछा, निस्सरा, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से भेजा था कि तुम उस नौजवान के साथ रहो और वापस आकर मुझे बताओ कि तुमने उन्हें कैसा पाया। मियसरा ने अदब से सर झुकाया और फिर एक एक वाकया सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि सफर के दौरान कैसे बादल का टुकड़ा मुसलसल उन पर साया किए रहा, कैसे एक मौके पर एक जहरीला सांप नमूदार हुआ तो फौरन मर गया, कैसे खुश्क कुएं से पानी जारी हो गया और कैसे दरख्त उनके करीब आते ही सरसब्ज हो जाते थे। फिर मियसरा ने यह भी बताया कि हर पत्थर और हर दरख्त उन पर सलाम भेजता था और उनकी मौजूदगी से फजा नूरानी हो जाती थी। आखिर में उसने वो पैगाम भी दिया जो उस राहिब ने खास तौर पर जनाब खदीजा के लिए भेजा था। जनाब खदीजा ताहिरा ये सब कुछ निहायत गौर से सुनती रही और जब मियसरा ने अपनी बात खत्म की तो बोला, एक मौजज़ा तो ऐसा है जिसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी आंखों से देख सकती है। हमने देखा कि ये नौजवान खाने में बहुत कम शरीक होते हैं, मगर जब कभी शरीक हुए तो जितना भी कम खाना होता वो सबके लिए काफी हो जाता और फिर भी इतना बाकी रहता जितना पहले रखा गया था। ये सुनकर जनाबे खदीजा ताहिरा के चेहरे पर सुकून की रोशनी फैल गई। उन्होंने नरमी से कहा, जाओ, जाकर उन्हें फौरन बुला लाओ और कहो कि वो हमारे साथ हमारे दस्तरखान पर तशरीफ लाए। मसरा फौरन गया और थोड़ी ही देर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आया। खदीजा ने घर के तमाम अफराद, मर्दों, रिश्तेदारों और गुलामों को एक ही दस्तरखान पर जमा किया। एक छोटे से प्याले में खजूरें रख दी गईं और सबको खाने के लिए बिठा दिया गया। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से पहली खजूर उठाई, बरकत का ये आलम हुआ कि सब ने पेट भर कर खाया। लेकिन जब सब खाने से फारिग हुए तो प्याले में खजूरें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी इब्तिदा में रखी गई थी। ये मंजर देखकर जनाब खदीजा ताहिरा की आंखों में अकीदत और इत्मीनान के जज्बात उतर आए। उन्होंने निहायत अदब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में शुक्र बजा लाए कि अल्लाह ने उन्हें ऐसे बाकमाल और बरकत वाले इंसान के कुर्ब के लिए मुंतखब किया है। पैगंबर इस्लाम वापस अपने घर की जानिब रवाना हुए तो जनाब खदीजा ताहिरा खुशी से सरशार थीं। उनके चेहरे पर इत्मीनान और शुक्र के आसार नमाया थे। उन्होंने मियसरा को बुलाया और फरमाया, तूने मुझे ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसके बाद तेरा हक मेरे ऊपर वाजिब हो गया है। जा, मैंने तुझे आजाद किया। फिर फरमाया, तेरी बीवी जो मेरी कनीज थी मैंने उसे भी आजाद किया और तेरे बच्चे जो मेरे गुलाम थे उन्हें भी आजाद कर दिया। इसके बाद खदीजा ताहिरा ने मियसरा को जमीन का एक टुकड़ा, 2 ऊंट और सोने चांदी की एक कसीर मिकदार अता की और कहा, ये सब कुछ तेरे लिए है क्योंकि तूने वो खबर दी है जिसने मेरे दिल को खुशी और यकीन से भर दिया है। मियसरा ने आंखों में आंसू लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया और कहा, ए मेरे आका, आज आपके वसीले से मुझे ना सिर्फ आजादी मिली बल्कि इज्जत और बरकत भी हासिल हुई। वो शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ रुखसत हुआ। अब जनाब खदीजा के दिल को इत्मीनान हासिल हो गया क्योंकि इससे पहले 3 बार मुख्तलिफ अंदाज में उन्हें इशारे मिल चुके थे। पहला वाकया वो था जब वो अपनी सहेलियों के साथ खाना काबा के सामने वाले सहन में बैठी हुई थी कि एक यहूदी आलिम वहां से गुजरा और बुलंद आवाज से कहने लगा, मुबारक हो तुम में एक ऐसी औरत है जो अल्लाह के आखिरी नबी की ज़ौजा बनने वाली है। ए मक्का की औरतों, वो नबी उसी सरजमीन पर जाहिर होगा जो तुम में से इस पर ईमान लाएगी, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होगी। बाकी औरतों ने गुस्से से कंकर उठाकर इस आलिम पर फेंके, मगर जनाब खदीजा के दिल में वो बात उतर गई, इसलिए कि वो उन औरतों में से थीं जो जाहिलियत के दौर में भी एक खुदा पर ईमान रखती थी।
ان کے دل میں توحید کی روشنی پہلے ہی موجود تھی۔ ان کے ایک چچا ورقہ بن نوفل بڑے عالم اور اہل کتاب میں سے تھے جو تورات اور زبور کے ماہر تھے۔ جناب خدیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھی اور ان سے تورات اور زبور کے مضامین سنا کرتی تھیں۔ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک دن جناب خدیجہ نے ایک یہودی عالم کو اپنے گھر پر دعوت دی، کیونکہ وہ علماء کا بے حد احترام کرتی تھی۔ دعوت کے دوران وہ خود بالا خانے پر بیٹھی سب دیکھ رہی تھی کہ وہ عالم اچانک کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے خدیجہ، اس گھر میں ایک عظیم نور موجود ہے، اللہ کی قسم یہ نور نبیوں کے آخری نبی کا نور ہے۔ یہ سن کر جناب خدیجہ کے دل کی گہرائیوں میں ایک انجان سی روشنی بھر گئی اور ان کا یقین مزید پختہ ہو گیا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ جلد پیش آنے والا ہے۔ یہودی عالم خدیجہ طاہرہ کے گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک گھبرا کر کہنے لگا، اے خدیجہ، یہ جو نوجوان گلی میں سے گزر رہا ہے، کیا تم اسے ایک لمحے کے لیے یہاں بلوا سکتی ہو؟ جناب خدیجہ نے ایک نظر باہر ڈالی تو پہچان لیا کہ یہ بنو ہاشم کا وہی نوجوان ہے جس کی پاکیزگی اور سچائی کی شہرت پورے مکہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ فوراً اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا کر میرے پیغام کے ساتھ اس نوجوان کو بلا لاؤ۔ غلام گیا اور تھوڑی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ طاہرہ کے گھر تشریف لائے۔ خدیجہ طاہرہ پردے میں تھی اور یہودی عالم ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے، یہودی عالم نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے شانے سے آپ کا لباس تھوڑا سا ہٹانا چاہتا ہوں تاکہ ایک نشانی دیکھ سکوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ عالم نے لباس کو ہٹایا، مہر نبوت کی زیارت کی اور عقیدت و احترام سے اسے بوسہ دیا، پھر ادب سے پیچھے ہٹ گیا اور اجازت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا۔ اس کے بعد وہ جناب خدیجہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے خدیجہ، یہ نوجوان کون تھا؟ خدیجہ طاہرہ نے قدر حیرانی سے کہا، تم نے کیا غضب کیا کہ اس کے لباس کو اس طرح ہٹا لیا؟ اگر اس کے چچا ابو طالب اس کے ساتھ ہوتے تو خدا کی قسم وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتے، وہ اپنے بھتیجے کو کسی کے ہاتھ لگنے بھی نہ دیتے۔ یہودی عالم نے کہا، اے خدیجہ، تم نہیں جانتی یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں، یہ اللہ کا آخری نبی ہونے والا ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر وہی مہر دیکھی ہے جس کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ تورات میں صاف لکھا ہے کہ اللہ کا آخری رسول اسی مکے کی سرزمین سے ظاہر ہوگا۔ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا، دادا اس کے بچپن میں وفات پائیں گے اور اس کی پرورش اس کے چچا کے زیر سایہ ہوگی۔ خدیجہ طاہرہ یہ سن کر چونک گئی اور بولے، ہاں ہاں، یہی ساری نشانیاں تو اس نوجوان میں موجود ہے۔ یہودی عالم نے مسکرا کر کہا، اے خدیجہ، سن لو، اسی نبی سے عرب کی ایک عورت نکاح کرے گی اور وہ عورت دنیا و آخرت کی سب سے خوش قسمت عورت ہوگی، کائنات کی ملکہ ہوگی۔ اے خدیجہ، سمجھدار انسان وہی ہے جو ایسی سعادت کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ خدیجہ طاہرہ نے اس کی بات کو دل میں بٹھا لیا، کیونکہ ان کا دل پہلے ہی اس نوجوان کی عظمت اور نورانیت کو محسوس کر چکا تھا۔ یہ وہ دوسرا واقعہ تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی سفر سے پہلے پیش آیا۔ ایک بار خانہ کعبہ کے سامنے ایک یہودی عالم نے ان عورتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے خدیجہ سے کہا تھا کہ تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی زوجہ بننے والی ہے، اور اب یہ دوسرا عالم بھی وہی بات دہرا رہا تھا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کے چچا ورقہ بن نوفل نے ایک دن ان کے لیے ایک تعویذ لکھا اور کہا، اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جانا، اللہ تمہیں نیکی اور خیر کی راہ دکھائے گا۔ جناب خدیجہ نے وہی کیا اور رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے، اے خدیجہ، تم اس نبی کی زوجہ بننے والی ہو جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو دل یقین سے بھر چکا تھا کہ اب وہ لمحہ قریب ہے جب تقدیر کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ تین نشانیاں تو خدیجہ طاہرہ کے پاس پہلے سے موجود تھیں۔ پھر میسرہ کی زبانی اس کے مشاہدات، اس عیسائی راہب کی پیشین گوئی اور اپنی آنکھوں سے اس نور کو دیکھنے کے بعد اب جناب خدیجہ یقین کی آخری منزل پر پہنچ چکی تھی کہ یہی ہے ان کا گوہر مقصود۔ دل میں سکون اتر آیا، مگر اب ایک نئی کیفیت شروع ہوئی، یہ کہ خدیجہ طاہرہ کے دل میں نکاح کی خواہش جاگ اٹھی، مگر ساتھ ہی دل میں ایک خوف بھی تھا۔
सोचती हैं कि मैं कैसे निकाह की पेशकश करूं। वो अल्लाह के आखिरी नबी है, कायनात के सरदार हैं, क्या वो मुझे कबूल फरमाएंगे? मगर दूसरी जानिब एक अंदेशा भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचती रहूं और उनका निकाह किसी और के साथ हो जाए। खदीजा ताहिरा दिल ही दिल में कशमकश में है, ना हिम्मत हो रही है और ना सुकून। आखिरकार उन्होंने अपनी निहायत करीबी सहेली नफीसा बिनते मनिया को बुलाया और कहा, ए नफीसा, तुम मेरी एक बात मानो। तुम जाओ और ये देखो कि क्या अबू तालिब के इस भतीजे के दिल में मेरे बारे में कोई ख्याल या रग़बत है। अगर मैं खुद रिश्ते की बात करूं तो कहीं वो इनकार तो नहीं कर देंगे। नफीसा ने बात कबूल की और फौरन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रवाना हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एहतराम के साथ इस्तकबाल फरमाया, बिठाया और पूछा, ए नफीसा, कैसे आना हुआ? नफीसा ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र अब निकाह के काबिल हो चुकी है, क्या आपने शादी का कोई इरादा फरमाया है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरे हालात तो तुम्हारे सामने गए, कुछ ज्यादा मालो दौलत नहीं है। हाँ, मेरे चचा अबू तालिब कहते थे कि तिजारत के सफर के बाद अब अल्लाह ने इतना दिया है कि शादी का इंतजाम हो सकता है। नफीसा कहती हैं, अगर मैं आपको ऐसा रिश्ता बताऊं जो हुस्न में भी बेमिसाल हो, मालो दौलत में भी बरकत हो और शराफत में भी इस मक्का की जमीन पर उसका कोई सानी ना हो, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इल्म लदुन्नी के मालिक है, जाहिर में मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूं। नफीसा अर्ज करती है, हाँ जनाब खदीजा ताहिरा खुद आपसे गुफ्तगू करना चाहती है। अगले दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई वकार और तहारत के साथ तैयार हुए, खुशबू लगाई, लिबास साफ पहना और अपने चचा अबू तालिब के मशवरे से खदीजा ताहिरा के घर की तरफ रवाना हुए। जनाब खदीजा ताहिरा ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने सफर तिजारत में बहुत बड़ा नफा हासिल किया, मैं आपकी मेहनत और दयानतदारी का शुक्रिया अदा करती हूं। अब जो हिस्सा आपका बनता है, इसके बारे में आपका क्या इरादा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत आजिज़ी से फरमाया कि मैं अपने ऊंट खरीद लेता हूं, अपनी तिजारत खुद शुरू करूं और जो रकम बचेगी इससे वो मेरी शादी का इंतजाम करना चाहते हैं। यह सुनकर खदीजा ताहिरा मुस्कुराई और कहने लगी, आपका क्या ख्याल है अगर मैं आपके लिए एक रिश्ता तजवीज करूं जो खानदान के लिहाज से भी आपके काबिल हो, किरदार में भी आपके हम मर्तबा हो और जो हर हाल में आपकी जिंदगी का सहारा बने? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा कि बात का रुख कहां जा रहा है, मगर नरमी से फरमाया, ए खदीजा, मेरा इरादा तो यह था कि मैं इस खानदान में निकाह करूं जो दौलत में मेरे बराबर हो मगर मुझसे बरतर ना हो। जनाबे खदीजा ने मुस्कुराकर कहा, तब तो यही रिश्ता आपके लिए सबसे मुनासिब है। बात इशारों में हो रही थी, नाम अब तक नहीं लिया गया था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, किस लिए? खदीजा ताहिरा ने बड़ी आजिज़ी से फरमाया, इसलिए कि मेरे पास जो कुछ था वो सब आपका हो चुका है। मेरी दौलत, मेरा सामान तिजारत, मेरी जायदाद सब आपके नाम हिबा किया जा चुका है। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं तो एक कनीज की तरह आपकी खिदमत में रहूंगी। अब दौलत का कोई फर्क बाकी नहीं रहा, बल्कि आप ही इस दौलत के मालिक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर निहायत इनकिसारी से फरमाया, मैं अपने चचा से मशवरा करके जवाब दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे। सुबह का वक्त था। बनी हाशिम के सारे नौजवान हजरत अबू तालिब के पास बैठे थे। अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे भतीजे, लगता है आज तुम्हारे दिल में कोई खास बात है, कहो क्या कहना चाहते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअद्दबाना अंदाज में फरमाया, चचा जान, आपने पहले भी फरमाया था कि शादी का वक्त आ गया है, तो अब मेरा भी यही इरादा है कि निकाह के मरहले से फारिग हो जाऊं। जनाबे खदीजा ताहिरा ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपने सफर तिजारत में बहुत बड़ा नफा हासिल किया, मैं आपकी मेहनत और दयानतदारी का शुक्रिया अदा करती हूं। अब जो हिस्सा आपका बनता है, इसके बारे में आपका क्या इरादा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत आजिज़ी से फरमाया है कि मैं अपने ऊंट खरीद लूं, अपनी तिजारत खुद शुरू करूं और जो रकम बचेगी इससे वो मेरी शादी का इंतजाम करना चाहते हैं। ये सुनकर खदीजा ताहिरा मुस्कुराईं और कहने लगी, आपका क्या ख्याल है अगर मैं आपके लिए एक रिश्ता तजवीज करूं
जो खानदान के लिहाज से भी आपके काबिल हो, किरदार में भी आपके हम मर्तबा हो और जो हर हाल में आपकी जिंदगी का सहारा बने। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, समझती गए कि बात का रुख कहा जा रहा है, मगर नरमी से फरमाया, ए खदीजा, मेरा इरादा तो यह था कि मैं उस खानदान में निकाह करूं जो दौलत में मेरे बराबर हो मगर मुझसे बरतर ना हो। जनाब खदीजा ने मुस्कुराकर कहा, तब तो यही रिश्ता आपके लिए सबसे मुनासिब है। बात इशारों में हो रही थी, नाम अब तक नहीं लिया गया था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, किस लिए? खदीजा ताहिरा ने बड़ी आजिजी से फरमाया, इसलिए कि मेरे पास जो कुछ था वो सब आपका हो चुका है। मेरी दौलत, मेरा सामाने तिजारत, मेरी जायदाद सब आपके नाम हवा किया जा चुका है। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं तो एक कनीज की तरह आपकी खिदमत में रहूंगी। अब दौलत का कोई फर्क बाकी नहीं रहा, बल्कि आप ही उस दौलत के मालिक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर निहायत इनकिसारी से फरमाया, मैं अपने चचा से मशवरा करके जवाब दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटे। सुबह का वक्त था। बनी हाशिम के सारे नौजवान हजरत अबू तालिब के पास बैठे थे। अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मेरे भतीजे, लगता है आज तुम्हारे दिल में कोई खास बात है, कहो क्या कहना चाहते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअद्दबाना अंदाज में फरमाया, चचा जान, आपने पहले भी फरमाया था कि शादी का वक्त आ गया है, तो अब मेरा भी यही इरादा है कि निकाह के मरहले से फारिग हो जाऊं। जनाब खदीजा ताहिरा के भाई का निकाह सिफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब से हुआ था। इस एतबार से सिफिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और हजरत अबू तालिब की बहन थी, मगर जनाब खदीजा की भावज भी थी। एक दिन जनाब खदीजा ने देखा कि सिफिया गैर मामूली वक्त पर उनके घर आ रही है। फौरन समझ गईं कि यह कोई खास मामला है। जनाब सिफिया ने आते ही बात शुरू की, खदीजा, शादी के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? जनाब खदीजा ने बगैर किसी तरद्दुद के जवाब दिया, मैंने फैसला कर लिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो आपके भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूंगी, और मैं इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। जनाब सिफिया उनके लहजे से मुतमईन हो गईं। यकीन कामिल हो गया कि मामला तय है। वो फौरन पलटकर अपने भाई हजरत अबू तालिब के पास आई और कहा, भाई, मामला तय हो गया है, खदीजा राजी है, तुम जो भी इंतजाम करो वो तुम्हारे साथ है। बहन की बात सुनकर अबू तालिब खुश हुए, तैयारियां मुकम्मल की और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता लेकर रवाना हुए। बनी हाशिम के नौजवानों का काफला शान और शौकत से निकला। अबू तालिब की कयादत में यह कारवां जनाब खदीजा के घर पहुंचा। इस वक्त जनाब खदीजा के वालिद वफात पा चुके थे। उनके चचा उमर बिन असद कबीले के सरदार थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद हजरत अबू तालिब ने निहायत अदब से रिश्ता पेश किया। उमर बिन असद ने ना तो कोई गुस्ताखी की और ना नाराजी दिखाई, लेकिन कहा, पहली बात तो यह है कि खदीजा ताहिरा के मामले में मैं दखल नहीं देता। वो खुद मुख्तार खातून है, अपना फैसला खुद करती हैं। लेकिन आपके रिश्ते को सुनने के बाद मैं पहले ही कह सकता हूं कि खदीजा कभी इस पर राजी नहीं होंगी। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते इसने ठुकरा दिए, बादशाहों के रिश्ते रद्द कर दिए, फिर वो ये रिश्ता कैसे कबूल करेगी? इसलिए मैं ये रिश्ता मुस्तरद करता हूं, क्योंकि मुझे खदीजा की मर्जी मालूम है। जनाब अबू तालिब के लिए यह जुमला गैरत को भड़काने के लिए काफी था। गैरत हाशमी जोश में आ गई। वो गुस्से और दुख के आलम में उठे। काफला वापस लौट आया। घर पहुंचकर खामोश बैठ गए। इधर जनाब खदीजा तक खबर पहुंची कि बनु हाशिम का काफला रिश्ता पेश करने आया और खाली हाथ वापस चला गया। खदीजा ताहिरा यह सुनकर सख्त परेशान हो गई। दिल में अफसोस हुआ कि यह क्या हो गया, सारा मामला तो बिगड़ गया। इतना साफ इनकार मेरे चचा की जानिब से हो गया है कि अब इसके बाद अगर जनाब खदीजा अपनी राय दे भी दें तो भी चचा का मामला नाजुक है। चचा ने एक बार इनकार कर दिया है, अब अगर खदीजा इसकी मुखालफत करेंगी तो वो अपनी तौहीन समझेंगे। अगरचे खदीजा ताहिरा खुद मुख्तार खातून है, मगर खुद मुख्तारी का मतलब ये नहीं कि बुजुर्गों की इज्जत पामाल की जाए। फिर खानदान बनु हाशिम इतने एहतराम के साथ हजरत अबू तालिब की कयादत में आया और इनकार उसी दरवाजे से हुआ, तो अब दोबारा वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये गैरत के खिलाफ होगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। जहन ने एक ख्याल दिया कि इस वक्त एक ही शख्स है जो इस मामले को संभाल सकता है, किसी तरह उसे बुलाया जाए। वो है जनाब खदीजा के चचा वर्का बिन नौफल,
जो निहायत आलिम, फाजिल और मुतय्यन इंसान थे, तौरात और इंजील के आलिम और नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान रखने वाले। उन्हें रसूल अकरम आलिना की अजमत और सच्चाई पर पहले ही से यकीन था और पैगंबर के ऐलान रिसालत के फौरन बाद इनका इंतकाल हो गया। जनाब खदीजा और वर्का बिन नौफल हम उम्र थे। खदीजा जानती थी कि वही उस मामले में मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक लिहाज से वो उनके भाई भी है और खानदान के बुजुर्ग भी। चुनाचे खदीजा ने अपनी कनीज को हुक्म दिया कि फौरन जाकर मेरे चचा वर्का बिन नौफल को बुला लाओ। कुछ देर बाद वर्का तशरीफ लाए। खदीजा को बेटियों जैसी मोहब्बत से देखते थे। आते ही बोले, खदीजा क्या बात है, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। खदीजा ने गहरी सांस ली और कहा, परेशान ऐसे ना हो चचा, इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं, कोई नहीं जो मेरा बोझ हल्का करे। वर्का मुस्कुरा कर मजाक के अंदाज में बोले, खदीजा इसमें तो तुम्हारी अपनी गलती है। बहुत से रिश्ते आए मगर तुमने सब रद्द कर दिए। रिश्ता ही तो वो सहारा होता है जो दुख सुख का साथी बनता है। खदीजा ने फौरन कहा, मैंने कौन सा मुनासिब रिश्ता रद्द किया चचा? वर्का बोले, फुला बादशाह, फुला हाकिम, फुला सरदार सब तुमसे रिश्ते चाहते थे मगर तुमने किसी को कबूल न किया। खदीजा ने जवाब दिया, चचा वो सब मक्का से बाहर के रिश्ते थे, मैं अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती थी। वर्का ने कहा, फिर मक्का के अंदर भी तो बहुत बड़े बड़े सरदार हैं, अबू जहल, उतबा, शेबा जैसे रईस है, उनके रिश्ते भी आए थे। खदीजा ने फौरन जवाब दिया, चचा वो सब गुमराह हैं, उनके रास्ते बातिल हैं, गुमराहों से मैं कैसे निकाह करूं? आपके जहन में मक्का का रहने वाला कोई ऐसा शरीफ शख्स नहीं जो मेरा साथी भी बने और गुमराह भी ना हो? वर्का बिन नौफल ने कहा कि ऐसी तो पूरे मक्का में एक ही शख्सियत मेरे जहन में आ रही है और वो है अब्दुल्ला का यतीम। जनाब खदीजा ताहिरा ने यह नाम सुना तो कहा कि आपने तो बड़ी तारीफ कर दी, मगर दुनिया के हर इंसान में कोई ना कोई ऐब होता है, जरा मुझे बताइए तो सही उनमें क्या खराबियां हैं, क्या ऐब हैं, ताकि उसके बाद में उस रिश्ते के बारे में कोई राय कायम कर सकूं। वर्का बिन नौफल ने कहा कि हां ये भी जरूरी है, दोनों पहलू मालूम होने चाहिए। अच्छा तो अब सुनो, उसके ऐब सुनो। ये कहकर वर्का ने कहना शुरू किया कि ये वो है जिसका हसब बेमिसाल है, जिसका खानदान सबसे बरतर है, जिसकी आंखों में सुरमा कुदरत ने रखा है, जिसके अखलाक सबसे जमील है, जिसकी सखावत सबके लिए आम है, जिसकी मेहरबानी दुश्मन तक पर बरस जाती है। खदीजा ताहिरा ने कहा कि ये सब तो आपने खूबियां बताई, मैं तो कह रही हूं कि ऐब बताइए। वर्का बोले कि हाँ सुनो, ये वो है जिसका बातिन उसके जाहिर से बेहतर है, ये वो है कि कायनात में इससे अफजल कोई नहीं, ये वो है जिसके खानदान की मिसाल नहीं, ये वो है जिसकी शख्सियत की नजीर नहीं। खदीजा कहती हैं कि चचा ये तो सब तारीफें हैं, मैं तो कह रही हूं कि ऐब गिनवाइए। वर्का मुस्कुराकर बोले कि अच्छा अब उसके ऐब भी सुनो। ये वो है जिसका चेहरा चांद की मानिंद रोशन है, जिसकी पेशानी सितारों से ज्यादा चमकती है, जिसकी खुशबू मुश्क व अंबर से ज्यादा है, जिसका कलाम शहद से ज्यादा शीरे है, जब वो चलता है तो यूं लगता है जैसे 14वीं का चांद जमीन पर चल रहा हो। खदीजा हैरान होकर कहती हैं कि ये सब तो फजाइल है, मैं तो पूछ रही हूं कि कोई ऐब बताइए। वर्का बिन नौफल ने हंस कर कहा कि खदीजा इसका ऐब कौन गिनवाए जिसमें कोई ऐब ही नहीं, जो सर से लेकर पांव तक फजीलत और कमाल का मुजस्मा है, जो खल्के खुदा में सबसे बरतर और सबसे अफजल है। जनाब खदीजा ने कहा कि जब ऐसी कैफियत है कि आप जैसे आलमे तौरात भी इस शख्सियत को बेऐब करार दे रहे हैं, तो फिर मेरे लिए अब किसी और रिश्ते का तसव्वुर मुमकिन नहीं। अब मैं चाहती हूं कि आप किसी तरह इस मामले को अंजाम तक पहुंचा दें। वर्का बिन नौफल ने कहा, खदीजा ये मामला ऐसा नहीं कि मैं बस देखकर हाथ पर हाथ रख दूं, मेरी भी एक शर्त है, मुझे भी कुछ चाहिए। खदीजा ताहिरा बोले, जो चाहे जो तलब करे आपके लिए है, दौलत चाहिए तो रख ले, सवारी चाहिए, जायदाद चाहिए, मकान चाहिए, सब आपके नाम। वर्का ने मुस्कुराकर कहा, खदीजा तुम जानती हो कि मुझे दुनियावी चीजों की कभी हाजत नहीं रही, मैं तो कुछ और मांगता हूं। खदीजा ने आजिज़ी से कहा, बताइए आपका मुतालबा क्या है, मैं पूरा करूंगी। वर्का ने कहा, सुनो खदीजा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा शौहर वो होगा जो कयामत के दिन बहुतों की शफात करेगा। इस गौर से आज मेरा बदन कांप उठता है, बस एक वादा करो कि मैदान कयामत में तुम अपने शौहर से मेरी शफात का सवाल करना। खदीजा ने फौरन कहा, चचा मेरा वादा है, मैं दिलो जान से आपके लिए क़यामत में शफात की गुजारिश करूंगी। वर्का ने खुश होकर कहा,
अब बताओ, मैं दिलो जान से इस रिश्ते को तैयारी में लगा दूं। मसला क्या है, क्यों परेशान हो? खदीजा ने अर्ज की, मसला यह है कि एक तरफ मेरे चचा ने इनकार कर दिया है और दूसरी तरफ अबू तालिब बनु हाशिम का काफिला लेकर आया था, मगर अबू तालिब को दरवाजे से मरूब कर दिया गया। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो खानदान की गैरत मुझ पर बरस पड़ेगी। वर्का ने पुरज़्म कहा, ठहरो, इस मसले को मैं सुलझाता हूं। वो उठा और पहले उमर बिन असद के पास गया, जो बनु हाशिम के एक बड़े सरदार और खदीजा के रिश्तेदार थे। वर्का ने सख्त लहजे में कहा, ए उमर, तुमने क्या कर दिया? खदीजा के लिए आने वाला रिश्ता वापस भेज दिया और बनु हाशिम को जलील कर दिया। क्या तुम नहीं समझते कि अगर बनु हाशिम का गुरूर मजरू हुआ और वो तलवारें उठा ले तो पूरे मक्का में हमारा कौन हामी रहेगा? तुमने अबू तालिब और उनके साथ आए हुए लोगों को तुम्हारे दरवाजे से लौटाया। क्या तुमने नताइज पर गौर किया? अगर ये लोग हमारे खिलाफ हो गए तो हमारी इज्जत, दौलत और इक्तदार सब मसाइल में फंस जाएंगे। गे उमर बिन असद लहजा भर के लिए घबरा कर बोला, मैंने किसी का इहानत नहीं की, मैंने दरवाजे से किसी को नहीं निकाला, बस मैंने ये कहा था कि खदीजा का फैसला खुद खदीजा करेंगी। वरका ने सख्त लहजे में दोहराया, तुम ये मत समझो कि ये मामूली बात है, ये वो घर है जो हमारे रिश्ते, इज्जत और कबायली तवाजुन का महवर है। ए उमर, तुम्हें समझना होगा कि अभी हालात नाजुक है, तुम्हारे एक फैसले से पूरी कौम का रुख बदल सकता है। अब तुम्हें फिर सोचना होगा कि इस मसले को किस तरह सुलझाया जाए। कौन है जो बनी हाशिम का रिश्ता रद्द करे और तुमने उसे रद्द कर दिया? उमर बिन असद कहते हैं कि देखो, दो वजूहात थी। खानदान बनी हाशिम से अगर किसी और का रिश्ता आता तो शायद मैं रद्द ना करता। खानदान बनु हाशिम अपने खानदान के एक यतीम का रिश्ता लेकर आया था, अब्दुल्ला के यतीम का। ये यतीम है जिसके पास दुनियावी दौलत नहीं है, और हम लोग इससे पहले उतबा, शीबा और बुते बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते को रद्द कर चुके हैं खदीजा की वजह से। अब अगर उनको इत्तला मिल जाए कि हमारे रिश्तों को ठुकराया गया था और एक यतीम के रिश्ते को कबूल किया गया है तो सारा मक्का हमारे खिलाफ हो जाएगा। सब ये समझेंगे कि हमने उनकी तौहीन की है। इतने सारे लोगों का मुकाबला कौन करे? और दूसरी वजह यह है कि अगर मैं राजी भी हो जाता तो मेरी भतीजी खदीजा कहां मानने वाली है। अब उमर बिन असद के जहन में तो वो तसव्वुर नहीं है, ना उनको नबूवत रसूल का इल्म है, ना उनको तौरात और इंजील की पेशीन गोइयों से कोई दिलचस्पी है। ये तो एक आम शख्सियत समझ के बात कर रहे हैं कि खदीजा ने इतने बड़े बड़े बादशाहों के रिश्तों को ठुकरा दिया, मक्का के सरदारों के रिश्तों को रद्द कर दिया, तो ये भी कहां तैयार होती, बल्कि वो मुझी से नाराज हो जाती कि मैंने चचा होकर उनके हक का ख्याल न किया। वर्का बिन नौफल कहते हैं कि ए उमर बिन असद, ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर हमने अब्दुल्ला की यतीम से रिश्ता कर दिया तो सारा मक्का हमारे खिलाफ होगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सारे मक्का में कोई ऐसा नहीं जो अब्दुल्ला के उस यतीम का एहतराम ना करता हो और उसके मुकाम को ना जानता हो? सारा मक्का उसे सादिक व अमीन कहता है। हाँ, अगर कोई और रिश्ता आए तो यकीनन लोग एतराज करेंगे, मगर अगर इसके रिश्ते का इंतखाब करोगे तो किसी को एतराज नहीं होगा। ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और जहां तक खदीजा का मामला है तो उससे पहले तो हर रिश्ता खदीजा तक पहुंचाया गया तो उन्होंने इनकार किया। इस दफा तुमने इस रिश्ते को वहां तक क्यों ना पहुंचाया? अपनी मर्जी से कैसे फैसला कर लिया? उमर बिन असद घबरा कर कहते हैं, तो क्या तुम्हें खदीजा की राय मालूम हो गई? वरफा बिन नौफल ने कहा, हाँ, खदीजा दिलो जान से इस रिश्ते पर राजी और खुश है। उमर बिन असद ने यह सुना तो घबरा गए कि अगर मेरी भतीजी राजी हो गई तो अब तो ये बात बाहर निकल गई, मेरी तौहीन होगी। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि यह मामला इस तरह से तय पा जाए कि मेरा एहतराम भी बरकरार रहे और बात भी बन जाए? वर्का ने कहा कि हाँ, वादा करो, अब अगर खानदान बनी हाशिम तुम्हारे पास आ गया तो तुम पूरे एहतराम के साथ उनसे बात करोगे। अब उमर बिन असद मजीद घबरा गए कि अगर मेरी अपनी भतीजी ही मेरी बात को तस्लीम नहीं कर रही और ये बात बाहर निकल गई तो खदीजा का मकाम मेरे मुकाबले में ज्यादा है। मक्का में मैं तो मशहूर ही इसलिए हूं कि खदीजा का चचा हूं, कितनी मेरी तौहीन होगी। चुनांचा वरका बिन नौफल को जबरदस्ती उमर बिन असद ने भेजा कि जाके किसी तरह खानदान बनी हाशिम को राजी करो। वरका बिन नौफल अबू तालिब के मकान पर आए। बनी हाशिम के सारे बुजुर्गों जवान जमा हैं और बात यह हो रही है कि आज पहली मर्तबा हमारे खानदान की तारीख में इस तरह से हमें खाली हाथ पलटाया गया। जवान जोश में है, बुजुर्ग गुस्से में है, मगर अबू तालिब जो गालिबन हकाइक को जानते हैं वो खामोश है।
सर झुका हुआ है। वरक़ा बिन नौफल दाखिल हुए तो देखा कि उस वक्त महफिल का अंदाज कुछ और है, लेकिन चूंकि वो तौरात और ज़बूर के आलिम हैं और मक्का के इंतहाई पढ़े लिखे इंसानों में शुमार होते हैं, इसलिए बड़ी हिकमत अमली के साथ अबू तालिब से गुफ्तगू की। उन्हें मालूम था कि जनाबे हमजा से बात करने का फायदा नहीं, जनाबे अब्बास से गुफ्तगू करने का फायदा नहीं। ये सब उस वक्त जोशो जज्बात में है। वो सीधे अबू तालिब के पास गए, उनसे जाकर बात की और अपने भाई की जानिब से माजरत की। जनाबे खदीजा की परेशानी उनको बताई, अपने खानदान की बदनामी का तस्करा किया और आखिर में इस मरहले पर आकर बात को खत्म किया कि अभी किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ है और जो कुछ आपकी तौहीन हुई है हम माफी मांगते हैं, आप मेरे साथ चलिए। हजरत अबू तालिब को राजी किया। बस अबू तालिब राजी हो गए तो अब ना हमजा बोल सकते थे ना अब्बास। सारा खानदान पीछे पीछे चल रहा था। उमर बिन असद ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ इस्तकबाल किया। मामला तय पा गया। कहा कि हमें यह रिश्ता कबूल है और इसके बाद एक तारीख मुकर्रर हो गई। ये दिन वो था जिसकी तैयारी आसमानों पर पहले ही हो चुकी थी, मगर जमीन पर इसकी तारीख किसी मुस्तनद रिवायत में नहीं मिलती। बस इतना जिक्र आता है कि तारीख बहुत करीब की रखी गई थी ताकि निकाह फौरन अंजाम पा जाए और रुखसती बाद में हो जाए। उमर बिन असद ने वजह बयान की थी कि यह खानदान की सबसे मुअज़्ज़ज़ औरत की शादी है जो मलकतुल अरब कहलाती है। हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए। खानदान बनी हाशिम ने फरमाया कि हमें तैयारी की नहीं, सिर्फ अक़्दे निकाह की जल्दी है ताकि ये बाबरकत बंधन कायम हो जाए। चुनांचे उमर बिन असद इस तजवीज पर राजी हो गए। जब दिन मुकर्रर हुआ तो खदीजा अल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के घर में एक मुख्तसर मगर बावकार तकरीब का एहतमाम किया गया। अगरचे वक्त कम था, मगर खदीजा को मालूम था कि यह कोई आम शादी नहीं, यह रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का दिन है। वो दिन जिसकी खुशबू फरिश्तों की देती है। ने भी महसूस की थी मुख्तसर वक्त में बेहतरीन इंतजामात हो गए। खानदान के लोग आ गए। कुरैश के चंद सरदार भी मौजूद थे। इसी दौरान मैसरा ने देखा कि अबू जहल महफिल में दाखिल हुआ। चूंकि उसे भी दावत दी गई थी, वो गुरूर से चलता हुआ आया। जब उसने देखा कि सामने एक बड़ी ऊंची कुर्सी रखी है तो फौरन सोचा ये कुर्सी मेरे लिए है। मक्के के सरदार के लिए वो आगे बढ़ा। अभी बैठने ही लगा था कि मैसरा ने तेज लहजे में रोक दिया, ए अबू जहल, अपने मुकाम को पहचान। ये तेरा मकाम नहीं है, ये कुर्सी इस हस्ती के लिए है जिसे खालिक कायनात ने अपनी रहमत कामिला बनाया है। तुझे आम मेहमानों के साथ बैठना होगा। अबू जहल के चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीरें दौड़ गईं और वो खामोशी से पीछे हटकर आम सफ में बैठ गया। अभी वो दिल ही दिल में अपनी खफत छुपा रहा था कि अचानक शोर बुलंद हुआ, बारात आ गई, बारात आ गई। सबके चेहरे दमक उठे, खुशी की लहरें पूरे घर में दौड़ गईं। सबकी नजरें दरवाजे की सिमत उठीं और फिर वो मंजर आया जो तारीख इंसानियत का फख्र बन गया। हजरत अबू तालिब आगे आगे और उनके पहलू में सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आपकी शान निराली थी। बदन अतर पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पैराहन था। उंगली में सुर्ख अकीक की अंगूठी जगमगा रही थी। दस्ते मुबारक में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असा था और अदमैन शरीफैन में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की नालैन थी। यूं महसूस होता था जैसे तमाम अंबिया की बरकतें आपके वजूद अक़दस में जमा हो गई हों। रोशन चेहरा आफताब से ज्यादा दरख्शां, कदमों के नीचे जमीन नाजा, फजा में रहमतों की खुशबू फैल चुकी थी। इसी शानो शौकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास में आ गए, जहां हजरत खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा दिल में सुकून और आंखों में खुशी लिए मुंतजिर थी। जनाब अब्बास हिफाजत के लिए पीछे थे। सारे जवानाने बनी हाशिम और बुजुर्गाने खानवाद पैगंबर इस्लाम को लेकर आ रहे थे। पूरी शान और शौकत के साथ ये बारात महफिल में दाखिल हुई। सब मेहमान इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अबू जहल जो अभी आकर बैठा ही था, जब ये मंजर देखा तो गुरूर और तकब्बुर के मारे अपनी जगह से न उठा। उसे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर शाम के दौरान पैदा होने वाला हसद भी दिल में चब रहा था। जनाब हमजा से ये गुस्ताखी बर्दाश्त ना हो सकी। फौरन तलवार नियाम से निकाली और आगे बढ़कर अबू जहल के हाथ को अपने पंजे में लिया और इतनी सख्ती से दबाया कि रिवायत में है इसकी उंगलियों से खून बहने लगा। गुस्से में फरमाया, ए बदबख्त, ये कैसी बेअदबी है। मेरा भतीजा सारी इंसानियत का सरदार दाखिल हो रहा है। मक्का के सारे रईस एहतरामन खड़े हो गए और तू अपनी जगह जमा बैठा है।
तुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। तकलीफ की शिद्दत से तड़प कर अबू जहल उठ खड़ा हुआ। हजरत अबू तालिब ने यह मंजर देखा तो फौरन आवाज दी, हमजा, ये शादी का मौका है, मेहमान आए हुए हैं, इस वक्त कोई तनाज़ा न छेड़ो। जनाबे हमजा ने अपने भाई की बात सुनी, जो खानदान के बुजुर्ग और सरदार थे। फौरन सब्र किया और अपनी जगह वापस आ गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर मरकजी कुर्सी पर बिठाया गया। एक जानिब हजरत अबू तालिब बैठे थे, दूसरी जानिब हजरत खदीजा के चचा उमर बिन असद, उनके बराबर वर्का बिन नौफल तशरीफ फरमा थे। कुछ देर बाद निकाह की रस्म का आगाज हुआ। हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। खुतबे में सबसे पहले परवरदिगार आलम की तौहीद बयान की, फिर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की नबूवतों का जिक्र किया, इब्राहीम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम की फजीलतों का तज़किरा किया। इसके बाद अपने खानदान बनी हाशिम की अजमत बयान की और फरमाया, ए मक्का वालों, तुम जानते हो कि इल्म, हिल्म, शराफत और बुलंदी नसब में मेरे भतीजे जैसा कोई नहीं। हाँ, अगर माल का सवाल है तो माल तो एक ढलते हुए साए और उड़ते हुए पत्ते की मानिंद है। माल के होने या न होने से फजीलत में कोई कमी या इजाफा नहीं होता। फिर फरमाया, मैं अपने भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निकाह खदीजा बिनते खुलैल के साथ करता हूं। खुतबे के इख्तिताम पर फरमाया, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अनकरीब मेरे भतीजे को एक बहुत बड़ी खुशखबरी और अजीम सादत नसीब होने वाली है। हजरत अबू तालिब का कलाम खत्म हुआ तो खदीजा के नुमाइंदे की तरफ से जवाब देना बाकी था। इस मौके पर वर्का बिन नौफल तेजी से आगे बढ़े और निहायत फसाहत और बलागत से जवाब दिया। पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा किया और फरमाया, ए सरदार कुरैश, कौन है जो आपके खानदान की अजमत से नावाकिफ हो? हमारे लिए फख्र का मकाम है कि आज हम अपनी भतीजी खदीजा का रिश्ता आपके भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के साथ जोड़ रहे हैं। यूं वर्का ने निकाह के जुमले मुकम्मल किए। अगरचे ये निकाह ऐलान नबूवत से पहले हुआ, मगर ये निकाह दरअसल आसमानी हुक्म के मुताबिक शरीयत इस्लामिया के तमाम उसूलों पर पूरा उतरने वाला था। अबू तालिब ने फरमाया, वर्का, आपने जो जवाब दिया वो अमदा था, मगर हम चाहते हैं कि खदीजा के हकीकी चचा, जो उनके नुमाइंदे और वकील है, वो भी इन जुमलों का जवाब दे। ऐसा महसूस होता था कि वर्का बिन नौफल ने जल्दी इसलिए की कि वो चाहते थे कि इस तारीख साज मौके पर अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की रस्म में उनका नाम भी शामिल हो जाए और उनके अल्फाज भी इस बाबरकत अक्द का हिस्सा बन जाए। उमर इब्ने असद ने जवाब दिया और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई कि ये निकाह हो गया। हजरत अबू तालिब ने निकाह के वक्त ही हक़े महर हजरत खदीजा को अदा कर दिया। हक़े महर मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक 20 ऊंट या 12.5 आंसू सोना या 400 सोने की अशरफिया था। इसके बाद इसी दिन वलीमे का एहतमाम किया गया और इस शान से कि एक ऊंट हजरत अबू तालिब ने अपनी तरफ से ज़बह किया, एक ऊंट पैगंबर इस्लाम ने अपने माल में से और बहुत सारे ऊंट जनाब खदीजा ने अपने माल में से ज़बह करके दावत वलीमे का इंतजाम किया। इसके बाद जनाब खदीजा के खानदान ने रुखसती के लिए मोहलत मांगी और निकाह होने के बाद खानदान बनु हाशिम वापस अपने घर आ गया। तारीख बताती है कि तकरीबन 6 महीने रुखसती की तैयारियां होती रहे। जनाब खदीजा ने रुखसती के लिए शाहाना शानो शौकत के साथ एहतमाम किया था। 25 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम की शादी हुई और 50 साल की उम्र थी जब जनाब खदीजा का इंतकाल हुआ। पैगंबर इस्लाम ने अपने हाथों से जन्नतुल माला के कब्रिस्तान में आपको दफन किया। जनाब खदीजा की उम्र उस वक्त 65 साल थी। तारीख बताती है कि जितना अरसा जनाब खदीजा जिंदा रहे, पैगंबर इस्लाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि लाखों सलाम हो उस उम्मुल मोमिनीन की अजमत पर, जो इतनी दौलत की मालिका थी कि मलकतुल अरब कहलाती थी, लेकिन पैगंबर इस्लाम से शादी के बाद सारी दौलत उनके सुपुर्द कर दी, इस्लाम पर खर्च कर दी और खुद अपनी कनीज की तरह जिंदगी गुजारी। हत्ता कि जब पैगंबर इस्लाम गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे तो ये बीबी मक्का की संगलाख पहाड़ियों पर पैदल चलकर पैगंबर इस्लाम के लिए खाना लेकर जाया करती थी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
आखिर में कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमान अल्लाह।